everyone, welcome you all on Vidyasagar Online Education. As you know that today we have an interview of our students. So first of all, I would like to congratulate all the students of our 10th class. They bringing such a wonderful result. So thank you all the students. You really make us proud. And thank you so much all the teachers of our school. You really work hard for our students. And special thanks to class teacher of 10th class, Mr. Vijay sir. So thank you all the students and the teachers for your dedication and hard work. Thank you so much. Now I welcome to my toppers. First toppers, Devanshi Tiwari, please come. Devanshi, welcome. Thank you, ma'am. Next topper, Shruti Jha. Welcome, Shruti. Thank you, ma'am. Next topper, Avishka Singh. Welcome, Avishka. Thank you, ma'am. Next, Omkar Shukla. Welcome, Omkar. Thank you, ma'am. Next, Pragati Upadhyay. Welcome, Pragati. Thank you, ma'am. Next, Vipin Vishwakarma. Welcome, Vipin. Thank you, ma'am. Now, I would like to call our 10th class teacher, Mr. Vijay sir. Sir, please come. Welcome, sir. Thank you so much, ma'am. So, let's start our interview. All the toppers are here. So, we start our interview. So, first of all, welcome all of you. And please give your introduction to our viewers. Devanshi. Hello everyone, myself Devanshi Tiwari, daughter of Mr. and Mrs. Vijay Tiwari. I am from Raipur, Chhattisgarh. I studied in Vidyasagar English Medium School from last 10 years, standard 1st to standard 10th. And I achieved 93% in our school. I secured first rank in our class. Thank you. Please introduce yourself. Hello everyone, myself Shruti Jha, daughter of Mr. and Mrs. Manoj Jha. I am also from Raipur, Chhattisgarh, and I am studying here since 11 years. And as you all know, I secured second position and achieved 92.4% in my school. Thank you. Avishka, introduce yourself. Yes, ma'am. Hello everyone, I am Avishka Singh, daughter of Mr. and Mrs. Arvind Kumar Singh. I am from Raipur, Chhattisgarh. I am studying here since last 13 years and I secured 91% marks in my body conditions. Thank you. Omkar. Hello everyone, my name is Omkar Shukla, son of Santosh Kumar Shukla. I am studying in Vidyasagar English Medium School since last 10 years. I secured 89.5% marks in class 10th examination and achieved 4th rank in my class. Pragati. Yes, ma'am. Hello everyone, myself Pragati Upadhyay, daughter of Dinesh Chandra Upadhyay. I am from Raipur, Chhattisgarh. I am studying here since last 12 years. I secured 80.33% and 5th rank in our school. Vipin. Yes. I am Vipin Vishwakarma, son of Mr. Bhailal Vishwakarma. I studied in class 10th from Vidyasagar English Medium School. I secured 80.33% and I achieved 5th rank in my class. So thank you for all. So my first question I want to ask with Devanshi. How you feel today? I am feeling very special because this is the first interview in my life and class 10th result is the first achievement in my life. 10th क्लास का रिजल्ट तो सबके लिए बहुत ही स्पेशल रहता है. 10th क्लास ही स्पेशल रहता है सबके लिए. हम लोग जब से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से ही स्कूल में नर्सरी पिपलन से तो हम लोग का मतलब यही बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ो, 10th क्लास में अच्छा रिजल्ट लाना है. तो इसलिए 10th क्लास सबके लिए स्पेशल रहता है और 90+% अचीव करना बहुत बड़ी बात है. तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराया है, अपने टीचर्स को बहुत प्राउड फील कराया है. हमारे स्कूल का नाम भी बहुत हुआ है इससे. तो पेरेंट्स को प्राउड फील कर रहा है, टीचर्स को प्राउड फील कराया है, इससे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है. So Shruti, tell me how you feel today. Yes, ma'am. First of all, I am little nervous because this is the first interview, but we are excited also. जब से मतलब बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है कि 10th जो होता है बहुत मतलब लेवल होता है जिसको क्रॉस करना, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 1 या 2 में हम लोग रहते हैं तभी से हमको बोला जाता है कि तुमको 10th में अच्छा स्कोर करना है. तो मतलब बचपन से हम लोग हज़ारों सपने देख के रखते हैं कि हमको 10th में ऐसे पढ़ना है, इतने मार्क्स लाने हैं और आज जब वो सपना कहीं ना कहीं सच हो रहा है, हम लोगों ने 90+ स्कोर किया है तो बहुत अच्छी फीलिंग है और ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है.
सेकेंड थिंग, वो जो खुशी रहती है वो डबल तब हो जाती है जब पेरेंट्स को देखने को मिलता है। पेरेंट्स को जैसे कल से रिलेटिव्स के कॉल आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उनको वो जब पूछते हैं कि हाँ आपकी 50% है, आपके बच्चे ने कैसा स्कोर किया, एंड हमारे पेरेंट्स प्राउडली कहते हैं कि हाँ इसने इतना किया है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है वो देख के हमको अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि चलो आज हमारे पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी है उसके रीज़न हम हैं, तो ये लगता है कि चलो यार लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो बहुत ग्रेट फीलिंग है। जैसे कि श्रुति एंड देवांशी ने कहा कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है और आज उनका पहला इंटरव्यू है, तो वो लोग बहुत नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी प्राउड फील हो रहा है और उनके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो रहा है। और आज हमको भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे इतना अच्छा सिक्योर किए हैं रैंक और इतना अच्छा पोजीशन लेके आए हैं, और टॉप 90s में सभी का परसेंट आया है ऑलमोस्ट। और सभी लोग जो आज इतना एक्साइटेड और इतना खुश है, तो उनका रीज़न कहीं ना कहीं हम उनके हार्डवर्क को ही जाता है वो क्रेडिट पूरा। और हमारे स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत बहुत हम थैंक यू कहना चाहेंगे ये सब सक्सेस के लिए। So next question with Avishka, how you feel today? Ma'am, I'm very happy with my result firstly, और मतलब मैं कहीं ना कहीं मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी दैट मैं 90% स्कोर कर पाऊँ, और मैंने ऐसा कॉन्फिडेंस अपने मतलब अंदर मुझे कॉन्फिडेंस था अंदर कि शायद मैंने 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ। और जब मुझे ऐसा कभी कभी लगता था दैट मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, तो मेरी फैमिली और टीचर्स ने कभी कभी जैसे मेरा अगर मान लो कि यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अगर यहाँ आ गया, तो मेरे टीचर्स की अनकंडीशनल सपोर्ट और फैमिली के एनकरेजमेंट की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ जाता था। तो इसलिए मैं पहला अपना थैंक्स अपने टीचर्स को देना चाहूँगी और फैमिली को भी देना चाहूँगी कि उनकी वजह से एनकरेजमेंट की वजह से आज आप इतना अच्छा सिक्योर किया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टेबल लेवल पे पहुँचे। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओमकार, हाउ यू फील टुडे? आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज कहीं ना कहीं 10th क्लास मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, और इस क्लास में मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी का रिजल्ट है जो मेरा आज 89% लाया हूँ, और जिसके कारण मेरे मम्मी पापा को और मेरे टीचर्स को आज मेरे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी उनको मेरे पर ऐसे ही प्राउड होते रहे, और मैं बहुत ही खुश हुआ ये परसेंट ला के। नेक्स्ट प्रगति, हाउ यू फील टुडे? टेल मी। I am feeling very happy ma'am because this is a very big achievement for me. टीचर्स के सपोर्ट के बिना तो शायद हम लोग नहीं कर पाते, बट कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स अगर अच्छे स्कूल में हमको ना डालें तो शायद हमारी ये अचीवमेंट भी हमको नहीं मिलती। तो पेरेंट्स को मैं थैंक बोलना चाहूँगी, और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने अपने फैमिली को प्राउड फील कराया, अपने पेरेंट्स को टीचर्स को कराया, और मेरे टीचर्स की वजह से ये क्रिएट हुआ कि मैं उनको प्राउड फील करा सकूँ। उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है हम लोग के लिए। तो एक चाइल्ड के लिए और एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को प्राउड फील कराता है। तो मैं आज उनको प्राउड फील करा पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ, और मैं आगे भी चाहूँगी कि मैं ऐसा क्रिएट करूँ कि मेरे फैमिली मेरे टीचर्स मेरे ऊपर प्राउड फील करें। तो मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। वेरी गुड प्रगति। जैसे कि प्रगति ने कहा कि उनको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपना पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को दे रहे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का जो सक्सेस का जो क्रेडिट है वो अपने उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स को ही जाता है। तो जैसे कि हमारे सारे बच्चे अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को ही पूरा क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसके लिए हम भी बहुत थैंकफुल है कि हमारे पास इतने अच्छे बच्चे हैं, हमारे स्कूल में इतने अच्छे टॉपर्स बच्चे हैं। सो विपिन, टेल मी हाउ यू फील टुडे? आई फील वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं मेरे इस रिज़ल्ट को देखकर, क्योंकि 10th में इतना अच्छा परसेंट लाना मुश्किल होता है, पर मैंने कोशिश की और मुझे सफलता मिली। इसलिए जैसे कि सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सभी को बहुत ही अच्छा सभी बहुत एक्साइटेड है, और कहीं ना कहीं सभी को बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि जो इनके क्लास टीचर उनको भी कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। तो एक बार सर से पूछ लेते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है उनके बच्चों के इस अचीवमेंट से। सर बताइए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैम, कितने बच्चे अचीव किए हैं, 6 पोजीशंस में रहे हैं, मतलब टोटल 5th है, बट 2 लोग किए हैं, बट और भी बहुत सारे लोग जो 80% आए हैं, 80% में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 4 to 5 स्टूडेंट होंगे, और तो उन लोग को चांस नहीं मिल पाया क्योंकि सारे बच्चों को तो ला नहीं सकते। और मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट आज पहली बार मेरी खुद की लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट मैंने देखा है, कितना अच्छा स्कोर किए 90+ में इतने स्टूडेंट, फिर 80+ में इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं,
तो इतना बच्चों के हम बोलते हैं टीचर्स पढ़ाया तो अच्छा, बट स्टूडेंट को भी उतने ही लेवल पे मेहनत करना पड़ता है तभी कुछ हो पाता है। हम करते हैं 50% है और बाकी 50% तो बच्चों के ऊपर ही रहता है। बच्चे अगर अच्छे से अपने घर जाके मेहनत करेंगे और पूरा एफर्ट लगाएंगे और पूरा जितना प्रैक्टिस करेंगे हम जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट को, तभी इनसे पॉसिबल हो पाता है। तो इनके डेडिकेशन के लिए मैं हमेशा सैल्यूट करूँगा, क्योंकि इन्होंने जो दिखाया है, जो लॉन्ग प्रोसेस पूरा 1 ईयर इनके साथ मेरी जर्नी रही है और बहुत ज़्यादा मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इनसे, इनको भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है और बहुत अच्छा लगा इनके साथ। और अभी भी मैं शायद 10th क्लास होके जा रहे तो बहुत मिस करने वाला हूँ शायद इन लोग को, बट बहुत मज़ा आया मेरे को इन लोगों के साथ आगे बढ़ने। सो थैंक यू सर, आपने जिस तरीके से अपने वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया हमारे सामने, अपना जो भी बताया कि इन लोगों के पीछे आपने भी बहुत हार्ड वर्क किया है और बच्चे भी पूरा अपने एफर्ट लगाए हैं, डेडिकेशन के साथ अपना हार्ड वर्क किए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका हार्ड वर्क और बच्चों का डेडिकेशन से ही अचीवमेंट आया है। तो सभी को मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी और थैंक यू मैं थैंक यू भी आप सभी को बोलना चाहूँगी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा श्रुति से कि श्रुति, अपना स्कूल का आपका एक्सपीरियंस क्या है, बताइए। मैम, विद्यासागर इज आवर सेकेंड होम अगर बोला जाए तो, क्योंकि जब से यहाँ एडमिशन हुआ है तब से हम लोग अपने घर के कम और यहाँ पे ज़्यादा हो गए। टीचर्स, जूनियर्स, सीनियर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ हम लोग इतना घुल मिल गए हैं कि मतलब जो बातें हम घर पे नहीं करते वो हम यहाँ करते हैं। इनफैक्ट टीचर्स से हम लोग ज़्यादा कनेक्ट हो गए कहीं ना कहीं। हमारे टीचर्स और के साथ हम लोग को कभी ये नहीं लगा कि हमारे उनके बीच स्टूडेंट और टीचर वाला रिश्ता है। हमेशा मतलब उन्होंने भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया हमको और हमने भी मतलब हमेशा एज अ फ्रेंड, जैसे हम दोस्तों के साथ रहते थे वैसे ही टीचर्स के साथ। बहुत से फ्रेंड लोग हम लोगों को, जैसे दूसरे स्कूल वाले हैं तो वो लोग हम लोग को कहते हैं हमारे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, बट हम लोग को आज तक ये समझ भी नहीं आया स्ट्रिक्ट टीचर कौन कैसे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा फ्रेंड की तरह हम लोग टीचर के साथ रहते थे। पढ़ने टाइम पे पढ़ना, चिल मारते टाइम पे चिल मारना, गेम्स के टाइम पे गेम्स, मतलब एक अलग ही लेवल पे हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है ये। और हर एक दिन, हर एक मोमेंट हम लोगों का स्पेशल रहा, स्पेशली 10th क्लास में विजय सर, आप लोग जैसे टीचर्स के कारण शायद हम लोगों का स्कूल लाइफ इतना मेमोरेबल हो गया है कि इसको भूल ही नहीं सकता कोई। जब तक जिंदा है तब तक ये यादें हमारे साथ रहेंगी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि टीचर्स को हम भूल नहीं सकते, टीचर्स के साथ जो भी मेमोरी हमारा रहता है वो हम कभी भूल नहीं पाते, और जो भी स्कूल का जो भी हमने लाइफ टाइम अपना जो भी स्पेंड किया है, अपना जो भी मेमोरेबल मोमेंट्स, वो सब तो हमेशा मेमोरीज में ही रहता है, बेस्ट मेमोरीज में रहता है ना। तो बहुत अच्छा आपने श्रुति अपना एक्सपीरियंस बताया है। अब सेम क्वेश्चन मैं प्रगति से करना चाहूँगी। प्रगति, यस मैम। वुड यू लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंस? यस मैम, श्योर। जैसे कि मैम मैं यहाँ 12 साल से पढ़ रही हूँ, तो 12 साल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा साल होता है। बहुत बड़े ज़्यादा दिनों में यहाँ पे स्पेंड किए, तो यहाँ पे मैंने बचपन से पढ़ाई की है। बचपन से मुझे मेरे टीचर से प्यार मिला है, हर चीज़ मिले, सपोर्ट मिला है, और यहाँ डांटें भी मिलती है। हरकत मेरी है वैसी तो सभी बच्चों को मिलती है डांट, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ डांट भी मिलता है। तो यहाँ पे मेरा हर एक मोमेंट विद्यासागर में मेमोरेबल ही है। यहाँ पे जो मोमेंट हमने बिताया वो हमारी लाइफ का हर चीज़ मेमोरेबल ही है। मेरे लिए टीचर्स डे, टी-शर्ट डे, एनुअल फंक्शन, मतलब यहाँ का फंक्शन किसी भी स्कूल से सबसे बेस्ट रहा है। ये स्कूल मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट स्कूल है और सभी के लिए बेस्ट स्कूल ही होगा, क्योंकि ऐसा स्कूल कहीं पे नहीं मिल सकता। यहाँ पे हमने जो चिल मारा है, मस्ती की है, जो भी हमने किया है यहाँ पे बेस्ट है, और शायद ऐसे टीचर्स हमको कहीं भी नहीं मिल सकते। 11th-12th में भी हम लोग जाएंगे तो शायद ऐसे टीचर्स मिलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्कूल में डाला है, मुझे बेस्ट स्कूल दिया है। तो ये स्कूल मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट स्कूल रहेगा, और मैं चाहूँगी कि मुझे हमेशा मौका मिले कि मैं यहाँ पे आऊँ और टाइम स्पेंड करूँ। मुझे मिस भी बहुत होगा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। 12 साल बहुत होते हैं मैम, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर और कभी मौका मिले तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँ और बहुत रहूँ। थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज विद देवांशी। आपने प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल कैसे बनाया था? हाउ यू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन शेड्यूल? मैम 10th क्लास में तो वैसे सब बोलते हैं स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए तभी एकदम 90+ आएंगे, बट हम लोग स्टार्टिंग में तो उतना सीरियस नहीं थे। फिर डायरेक्टर सर जो है हमारे, हम लोग को क्लास में हमेशा आते रहते थे, ब्लूप्रिंट्स हम लोग को देते रहते थे, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताते रहते थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लगता था वो हम लोग को देते रहते, तो हम लोग वो बीच बीच में पढ़ते रहते थे, प्रिपेयर करते रहते थे। उसके बाद अक्टूबर-नवंबर जैसे ही आया तो हम लोग के क्लास टीचर जो विजय सर है, उन्होंने हम लोग को सजेस्ट किया कि अब स्टार्टिंग कर दो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते थे
क्योंकि पूरा बुक तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, उतना ज़्यादा रहते हैं उसमें चैप्टर्स। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते थे, जितने मार्क्स का जो रहता था उतना पढ़ते थे। तो उसके हिसाब से हम लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ, मतलब फेब तक हम लोग का फेब एंड तक हम लोग का हो गया था। रिवीजन करने का थोड़ा टाइम मिला था, तो उस पर हम लोग रिवीजन भी कर लिया और एग्ज़ाम टाइम पे हम लोग का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था। फिर उसके बाद Next, Omkar, you tell me how you prepare your examination schedule. फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक स्टूडेंट को तो अपना प्रिपरेशन शेड्यूल बनाना ही चाहिए और 10th क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने भी अपना प्रिपरेशन शेड्यूल बनाया था करीब 3 महीने पहले एग्ज़ाम के, और मैं तब तक हमारे यहाँ ब्लूप्रिंट आ चुका था। तो हमारे सर ने सजेस्ट किया था कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तुम अगर पढ़ोगे तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैं 2 आवर्स मॉर्निंग और 3 आवर्स नाइट पढ़ता था, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है और अच्छे से पढ़ना भी बनता है। इसलिए मैं अच्छे से 5 आवर्स डेली मन पढ़ता था और कहीं नहीं कहीं उसी का रिजल्ट है जो मेरा 89% आया है। Thank you for sharing such a wonderful schedule with us. Next question with Avishka. So Avishka, how you prepare your examination schedule? मैम पहले मेरा ज़्यादा कोई अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं था। मैंने ये कभी सोचा कि मुझे पूरे एक दिन पढ़ना है या फिर 24 आवर्स पढ़ना है, क्योंकि इससे और कुछ नहीं होता है, बस हमारा माइंड डिप्रेस हो सकता है, हम बोर हो सकते हैं और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो मैंने पहले तो मैं बुक पढ़ती थी और मैं सोची थी मैं अपना बुक पहले कवर करना चाहती हूँ, बट मुझे बाद में समझ रियलाइज़ हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर बुक कंप्लीट करने जाओगे तो आप सिर्फ नॉलेज गेन करोगे, आपको एग्ज़ाम भी आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो एग्ज़ाम के 3-4 मंथ्स पहले मैंने रेफरेंस बुक उठाए और प्रबोध से मैंने ब्लूप्रिंट्स देखे। उसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखे कि जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं क्वेश्चंस, मैंने उसको पिक किए, उस पर टिक किए और उसमें मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। और जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के आ रहे थे मैंने उस चैप्टर के कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपने। और मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि हमारे जो एक वीक होता है 7 डेज़ का, उसमें मैंने 3 डेज़ 3 सब्जेक्ट के लिए दिए थे और 3 जो बाकी रिमेनिंग थे वो बाकी रिमेनिंग के लिए। हाँ, 1-1 घंटा मैंने ऐसे प्रिपेयर किया कि मैं ऐसे 1-1 घंटा रोज़ हर एक सब्जेक्ट पर दिया करूँगी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है कि आपका माइंड मतलब पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, आप बोर हो जाते हो। और अगर अच्छा स्कोर करने तो ऑल सब्जेक्ट्स में ध्यान देना जरूरी है। और पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर अपना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो उसमें दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब नहीं करना चाहिए था। मतलब सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देना चाहिए। तो मैंने ऐसे किया और जो मेरा लास्ट संडे बचता था तो फिर मैंने ये सोचा कि मैंने जितना भी एक वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज एक क्विक रिविजन करना चाहिए। Yes, yes, very good. इस हिसाब से मेरा बहुत अच्छा शेड्यूल आपने प्लान किया, वेरी गुड आविष्का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क विद श्रुति। प्लीज टेल मी हाउ यू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन शेड्यूल। प्रिपरेशन शेड्यूल 10th क्लास के लिए मस्ट एंड शुड है, क्योंकि उसके बिना अगर आप टेक्स्ट बुक लेके पढ़ते हैं ना, तो हम लोग स्टार्टिंग में वही करते थे, बस टेक्स्ट बुक हम लोग लगता था हाँ हो जाएगा, टेक्स्ट बुक ही तो पढ़ना है। बट जब हम लोग उसको देखते थे तो मतलब इतना वास्ट सिलेबस इतना सारा रहता था, तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने से पहले थक जाते थे कि अब नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे होगा। तो पहले तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए, बट जैसे टाइम पास आया, अक्टूबर-नवंबर आया, तो हम लोगों को भी लगा कि कैसे होगा, इतना सब कुछ है। तो तब हम लोगों को विजय सर ने एडवाइस दिया कि ब्लूप्रिंट आप लोग देखो। तो ब्लूप्रिंट को हम लोगों ने जब देखा तो हमने पहले 1 वीक ब्लूप्रिंट से टिक करने में, उससे सेलेक्ट करने में क्वेश्चंस में दिया। जैसे अब किसी चैप्टर को अगर हम एसएसटी की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर से क्या था, जैसे 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आने वाला था। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि यहाँ हमको ना ही लेंथी पढ़ना है और ना ही यहाँ छोटे क्वेश्चन पे देखना है, हम लोगों को मीडियम आंसर्स पे देखना है। तो हम लोग फिर उसको पिक करते थे, टिक करके उसको रखते थे। तो यही प्रोसेस चला सारे सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने किया। लाइक स्पेशल हम लोगों ने स्पेशली देखा था एसएसटी एंड साइंस को। मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन को उतना अच्छा आप कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा लेंथी सिलेबस एसएसटी और साइंस का रहता है। तो इन दोनों में हम लोगों ने मतलब 1 वीक कम से कम हम लोगों ने लगाया कि हम लोग सिलेबस कम करने के लिए हम लोग 1 वीक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे थे। इससे क्या होगा कि हम लोगों ने मतलब विजय सर तो ये कहना था कि स्मार्ट वर्क करो, बिकॉज स्मार्ट वर्क इज मोर इफेक्टिव देन हार्ड वर्क। आप टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ लोगे, उससे क्या होता है ना, आपका माइंड कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाएगा कि कितना इतना सारा होता है। इसलिए टेक्स्ट बुक के बदले हम लोगों ने ब्लूप्रिंट प्रेफर किया, और उससे क्या हुआ कहीं ना कहीं यहाँ अगर इतना सिलेबस था तो इस पर आके हमारा इतना होगा। उसके बाद हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, किस सब्जेक्ट में मेरा मतलब वीक हूँ, किस में मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो।
वीक में आप देख लो, वीक नहीं तो अब मैं एक दिन में करती थी, लाइक एक दिन में अगर मैं 2 घंटा SST को दे रही हूँ तो 2 घंटा मुझे साइंस को देना है, 1 आवर मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करना है, और अगर मेरे पास फिर भी टाइम मिलता है तो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स को देना है। पूरे दिन जैसे स्कूल कोचिंग ये होने के बाद सेल्फ स्टडीज़ भी मस्ट इंश्योर है, तो उसके लिए टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट। तो अर्ली मॉर्निंग कभी कभार अलार्म बजता था तो कभी कभार इरिटेट होकर हम लोग बंद कर देते थे कि अभी नहीं पढ़ना, तो ज़्यादा मैं लेट नाइट में ज़्यादा पढ़ती थी, मतलब जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक। तो इसी तरह से हम लोग बहुत अच्छा सभी का प्लान जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है बहुत अच्छा है आप सभी का। मैं आगे कमिंग जनरेशन को भी यही बोलना चाहूँगी कि ब्लूप्रिंट को फॉलो करें और अपना जो भी सिलेबस है, जो भी पैटर्न है उसको फॉलो करके ही पढ़े, मतलब ब्लूप्रिंट को फॉलो करें, पूरा बुक पे फोकस ना करते हुए ब्लूप्रिंट पे फोकस करिए। और कहीं ना कहीं टीचर का गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे सारे बच्चे ने बताया कि उनके क्लास टीचर ने उनको बहुत गाइड किया था, उनके डायरेक्टर सर ने उनको गाइड किया था, तो जो टीचर्स का जो गाइडलाइन रहता है उसमें बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आप लोग उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आज जैसे हमारे टॉपर्स यहाँ पे हैं वैसे आप भी टॉप कर सकते हो और एग्जाम में आप भी अच्छा अचीव कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो जैसे बच्चों से मैंने सभी से शेड्यूल तो पूछ लिया, मैं क्लास टीचर से भी पूछना चाहूँगी। वैसे यार सर आप सब्जेक्ट टीचर्स भी रहे, इनको साइंस और मैथ्स आपने पढ़ाया है, तो आपका भी एक स्ट्रेटेजी रहा होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो आप भी अपना स्ट्रेटेजी प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। बिल्कुल, जब स्टार्ट हम लोग किए थे, जैसे बच्चे लोगों ने बोला भी आंसर दिया कि स्टार्ट हम टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया हमने। बहुत पूरा मैथ्स तो पूरा टेक्स्ट बुक से हमने किया, बट जो बाकी सब्जेक्ट्स रहते थे तो मैंने सोचा बहुत दिन, पिछले साल भी मेरा एक्सपीरियंस था, कहीं ना कहीं मेरे को पता चल चुका था कि ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही परीक्षा बोध प्रबोध भारती जो आते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जैसे ही आए थे तो बच्चे लोग का पहले इंटरव्यू देखते थे। बच्चे लोग बोलते थे कि सर इन्होंने 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ा, क्या इतना घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या हम लोग के लिए? तो मैं बोलता था कि नहीं, इतना घंटा पढ़ने के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको क्या स्मार्ट वे पढ़ना है, जैसे श्रुति ने बोला स्मार्टली आपको अप्रोच करके पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग को मैं ये बोलूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया। जैसे मैंने तो बोल दिया था इनको ऐसे करना है, बट इन्होंने अपना सच में मैंने जो बोला उसको सीरियसली लेके फॉलो किया, उस पॉइंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ शायद सर सही बोल रहे हैं। क्योंकि कोई इनके लिए भी नया था, ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था, बट आज जब रिजल्ट आया तो तुमको कहीं ना कहीं लग रहा है हाँ सर ने जो बोला था एकदम सही बोला था और एकदम सच में फंसा है आज के क्वेश्चन बहुत सारे। तो उन्होंने जैसे 1 मंथ करीब मुझे जहाँ तक लगता था कि वो क्वेश्चंस को पहले बनाते थे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ब्लूप्रिंट को एक तरह से बनाया उन्होंने बहुत अच्छे से। उसके बाद बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत किया उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं ये जो बोलते हैं ना बहुत ईजी पड़ जाना, बट आपने जैसे बोलते हैं हथौड़ा को अगर आपने शार्प कर लिया है तो पेड़ काटने में आपको कम टाइम लगता है। उसी तरह इन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट को एक तरह से मकअप कर लिया, उनको पता चल चुका था कि कहाँ से कितने नंबर के आने वाले हैं, तो इनके लिए ये जो काम था बहुत आसान हो गया था और बहुत आसानी से उन्होंने फेब तक ही पूरा कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन में चले गए वापस। तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी सर ने बताया हमारे बच्चों को, और आप लोग उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, अबूदुल निसार की गाइडलाइन को फॉलो किया और आज इतना अच्छा अचीव किए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे कमिंग जनरेशन के लिए। So next question I would like to ask with Vipin Vishwakarma, what is your aim? मैं बड़ा होके रेलवे जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लग रहा था, रेलवे जॉब करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आगे मैथ्स लेकर पढ़ना चाहता हूँ। So Omkar, what is your aim in your life? मैं 10th के बाद मैथ्स सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहता हूँ और आगे जाके IIT क्वालिफाई के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। So प्रगति, my next question. आप अपना सक्सेस क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सक्सेस क्रेडिट मैम, सक्सेस क्रेडिट तो सभी के लिए सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, तो मैं अपना पहले सक्सेस क्रेडिट अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, और सेकंड क्रेडिट मैं अपने सर को देना चाहती हूँ, विजय सर और अमृता मैम को, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ तो मुझे भी सपोर्ट चाहिए था। मेरे स्कूल से इतना सपोर्ट मिला है कि आज की डेट में मैं एक अच्छे प्लेयर के साथ साथ आज टॉपर लिस्ट में भी हूँ। तो अगर मैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ और स्टडी में नहीं हूँ तो फिर शायद मैं कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ जाऊँगी, यहाँ से मैं इस लेवल पे आ जाऊँगी। तो स्टडी का होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और बिना मेरे स्कूल के सपोर्ट के मैं स्टडी में अच्छी नहीं हो सकती थी। तो स्टडी में अच्छा होना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सभी के लिए। तो मैं अपना सक्सेस क्रेडिट अपने सर मैम को देना चाहती हूँ। और एक और चीज़ है कि बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज़ ऑलवेज अ वन पर्सन।
For me, my elder sister Pallavi Upadhyay is that person. She is always support me, stand for me, encourage me, motivate me. तो मैं अपना थैंक यू उनको बोलना चाहूँगी कि थैंक यू पल्लवी दी फॉर एवरीथिंग। एंड मैं विजय सर और आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज किसी लेवल पे हूँ सिर्फ आप लोग की वजह से। तो थैंक यू मैम, और मैं अपने सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। Thank you Pragati for your kind words. Next I would like to ask my question with ओमकार शुक्ला। अपना सक्सेस क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना सक्सेस क्रेडिट अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक कदम पर इंकरेज और मोटिवेट किया स्टडी करने के लिए। वैसे तो एक दिन हमारे डायरेक्टर सर ने हमसे कहा था कि तुम्हारे साल भर की मेहनत एक दिन तुम्हारे सामने आएगी और वो दिन तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल होना चाहिए। उनकी कहीं ना कहीं यही बातें मेरे दिमाग में रह गई और उसी का नतीजा है कि मैं 89% आया हूँ। इसलिए मैं अपने डायरेक्टर सर को बहुत ही हार्टली थैंक्स कहना चाहता हूँ और अपने सभी टीचर्स को हार्टली थैंक्स कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट आविष्का। सो आविष्का बताइए आप अपना सक्सेस क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? यस मैम, मैम जैसे इन दोनों ने कहा कि ये अपना सक्सेस क्रेडिट टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, तो वैसे मेरा भी सेम है। मैं भी अपने सक्सेस क्रेडिट टीचर्स और पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं दोनों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है अपनी लाइफ में पहली बार, और मेरी मम्मी ने इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से, और उन्होंने मुझ पर हमेशा बिलीव किया है कि मैं ये सक्सेस हासिल कर सकती हूँ। और जहाँ जहाँ जब भी मुझे लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि शायद पहले मैं ज़्यादा मैथ्स में अच्छी नहीं थी, तो विजय सर ने हमेशा मुझे कहा कि होगा, तुमसे होगा, तुम ट्राई करो, तुमसे हो सकता है। इसलिए जब जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ है तो सर ने ही मुझे हमेशा मोटिवेट किया है और कहा है और किया है ऐसा। तो मैं अपना ज़्यादातर क्रेडिट सर को देना चाहूँगी और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। गुड आविष्का। जैसे कि आविष्का ने बोला कि उन्होंने अपना क्रेडिट विजय सर को देना चाहा है और अपनी मदर को भी वो बहुत अपना क्रेडिट सक्सेस क्रेडिट डेडिकेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मदर भी हमारे स्कूल की स्टाफ है और मिसेस अनीता सिंह, तो मैडम हमेशा से ही उनको एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। आविष्का को ही नहीं, बाकी सारे बच्चों को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अनीता मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति से है मेरा, सेम क्वेश्चन है, आप अपना सक्सेस क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मेरे सक्सेस के पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स है, बहुत लोगों की होप्स है, तो उन सबको सबसे पहले थैंक यू। और बात आती है क्रेडिट की, तो वो मेरी फर्स्ट टीचर यानी कि मेरी मदर को जाता है, क्योंकि विद्यासागर में मैंने स्टैंडर्ड PP2 में एडमिशन लिया था, 11 साल से आऊँ, बट उससे पहले जो सीखा, जो समझा, जो जाना, वो सिर्फ बिकॉज ऑफ माई मदर। तो पहला क्रेडिट ऑब्वियसली उन्हीं को जाता है। और बात करूँ विजय सर की, तो सर आपको मैं थैंक यू बोल ही नहीं सकती, क्योंकि जो आपने जिस डेडिकेशन के साथ हमको पढ़ाया है, जिस डेडिकेशन के साथ हम लोगों को मोटिवेट किया है, मुझे पढ़ाया, उसके सामने एक थैंक यू वर्ड मतलब बहुत छोटा सा होने लगता है। बस ये कहूँगी कि मेरे अंदर अगर 90% लाने का कॉन्फिडेंस कहीं से आया तो वो आपकी मतलब आपकी मोटिवेशनल स्पीचेस के कारण आया, आपकी गाइडलाइंस के कारण आया, क्योंकि शायद नहीं सोच पा रही थी मैं, मुझे नहीं लगा था कि मैं 90 स्कोर करूँगी, बट आपने जब कॉन्फिडेंस दिया, आपने बोला कि यू कैन डू इट एंड यू विल, तो अंदर से लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, एंड आज मैंने किया है। और बात रहती है हमारे स्कूल की, तो स्कूल से जो लव केयर सपोर्ट मिला है डायरेक्टर सर से, इंग्लिश टीचर रोजेट मैम से, हमारी हिंदी टीचर कविता मैम से, इंग्लिश टीचर रोजेट मैम से, बाकी संस्कृत टीचर रेशमा मैडम से, और बाकी सारे टीचर SST टीचर शुभम सर से, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की गाइडलाइंस के बिना, आप लोगों के लव केयर सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो आज हम लोग जो हैं वो सब के पीछे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, तो थैंक्स टू एवरीवन। सेम बहुत अच्छा श्रुति ने आंसर दिया, जैसे कि उन्होंने सारे टीचर्स को अपना थैंक यू डेडिकेट किया है। तो वैसे ही हमारे टीचर्स हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे सारे सब्जेक्ट टीचर्स भी बहुत मेहनत की हमारे बच्चों के पीछे। तो मैं भी यही अपने बच्चों के साथ मैं भी अपने सारे टीचर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगी इतना डेडिकेशन, इतना वर्क, हार्ड वर्क के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन टू देवांशी, अपना सक्सेस क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मैम जैसे कि श्रुति ने कहा कि सबसे पहले तो सबके सक्सेस के पीछे उनकी मम्मी का ही हाथ होता है, क्योंकि सबसे पहले टीचर भी हमारी रही होती है, सब कुछ हमारी रही होती है। बचपन से हमको उन्हीं से जो भी मिलता है, जो भी सीख मिलती है हम लोग को, जो भी हम लोग स्कूल में आके हम लोग को ये सुनने मिलता है कि बेस्ट स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं
केयरिंग उन्हीं की रहती है, सब कुछ उन्हीं पे रहता है। तो सबसे पहले तो मैं अपना सक्सेस क्रेडिट अपनी मम्मी को ही देना चाहूँगी। उसके बाद स्कूल में ऑल टीचर्स को, ऑल सब्जेक्ट के टीचर्स को मैं अपना थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प किया, हमारा बहुत सपोर्ट किया, हम लोगों को बहुत झेल कर भी पढ़ाया, हमने बहुत मस्ती भी की है। कई बार तो टीचर गुस्सा होकर भी निकल जाते थे हम लोग की क्लास से, बट फिर भी आ जाते थे वापस, और उन लोगों ने हम लोग को बहुत झेला है। एक आध बार तो पनिशमेंट भी मिली है, पर बहुत अच्छा पढ़ाया हम लोगों को। और 10th क्लास में स्पेशली 10th क्लास का रिजल्ट तो मतलब 90+ स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, तो सारे टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की है, स्पेशली विजय सर। हम लोग कोचिंग भी उन्हीं के पास ज्वाइन किए थे। जब स्टार्टिंग में आए थे सर तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं था हम लोग का जान पहचान, बट धीरे धीरे हो गया। उसके बाद कोचिंग जब स्टार्ट किए तो कोचिंग में भी मैथ साइंस सर का बहुत अच्छे से समझ में आता था। सर ने बहुत इंकरेज किया, मोटिवेट किया कि तुम मतलब 90+ का ही सोचो तभी तुम लोग का हो पाएगा। इसलिए मैं सर को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगी सर। और घर में भी मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। पापा हमेशा यही बोलते थे कि जब 90-95 को सोचोगे तब जाके तुम लोग का कहीं 80-90s में आएगा, तो इसलिए हमेशा ऊपर की सोच रखनी चाहिए, तभी हम लोग का वहाँ तक लेवल हो सकता है। इसलिए मैं अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी, और स्कूल के ऑल टीचर्स को थैंक यू, एंड आप लोगों को स्पेशली थैंक यू सर। So my last and final question to you all. सबसे पहले विपिन, अपना सजेशन अपने जूनियर्स के लिए आप क्या देना चाहोगे? मैं जूनियर्स को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप रोज़ 6 से 5 घंटे पढ़ें और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट प्रगति। यस मैम, जैसे कि सभी जूनियर से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो ये मैटर नहीं करता, बट जब आप हो उस टाइम पे जिस पे आप हमेशा फोकस कर पाओ, आप उसी टाइम पे पढ़ो, वो ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है, किस टाइम पे पढ़ रहे हो वो ज़रूरी है। फुल डेडिकेशन तक Yes, करना ma'am. मस्ट एंड शुड। नेक्स्ट ओमकार। मैं अपने जूनियर्स को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और एग्ज़ाम के 5-6 महीने पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और स्मार्ट वर्क करें, ना कि ज़्यादा हार्ड वर्क करें। वेरी गुड। आविष्का। यस मैम, मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल और दिमाग में कहीं ये बात है, अगर एक नेगेटिविटी है कि मतलब आप ये सोचते हो कि ये 10th है यार कैसे होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो पहले तो आपको ये नेगेटिविटी हटाना होगा, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग में एक नेगेटिविटी ही होती है जो उसको पीछे हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ, तो पहले ये नेगेटिविटी हटाना पड़ेगा आपको, और पॉजिटिव माइंड के साथ आपको शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लास ही है और आपको अपने पूरे डेडिकेशन के साथ 100% देना है आपको। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप बस पॉजिटिव रहो, बाकी सब अच्छा हो। गुड। थैंक यू। श्रुति। यस मैम, आप लोग अपने टीचर्स के गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, और स्टार्टिंग में ही नहीं कि हम एकदम स्टार्टिंग से 10-11 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप धीरे धीरे जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना कीजिए, धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए और बाद में इंक्रीज़ कीजिए स्टडी आवर्स को। और एक और चीज़, ये 10th क्लास है, यहाँ का लास्ट ईयर है, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस क्लास को, तो आप लोग पढ़ाई भी कीजिए और इस क्लास को इन्जॉय भी कीजिए, क्योंकि ये ईयर दोबारा नहीं मिलने वाला, तो इन्जॉय कीजिए और फिर अच्छे से पढ़िए। वेरी गुड। देवांशी। यस मैम, जैसे कि श्रुति ने कहा कि ईयर दोबारा नहीं मिल रहा है, तो मैं भी बोल रही हूँ कि ये ईयर भी तो दोबारा नहीं आएगा, और ये स्कूल भी दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये स्कूल पे हमने जितनी मस्ती की है शायद ही किसी और स्कूल में हम लोग कर पाए। यहाँ के टीचर्स हम लोग के एकदम एज अ फ्रेंड ही रहते थे, हम लोग हर एक चीज़ शेयर किए हैं अपने टीचर्स के साथ, और उन लोग की रेस्पेक्ट भी किया है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा टीचर्स की सबसे पहले तो रेस्पेक्ट करना अच्छे से सीखो, उसके बाद पढ़ाई भी करो और मस्ती भी करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के चक्कर में पूरा मस्ती ही हो जाओ, क्योंकि 10th क्लास में मस्ती तो ज़रूरी है जैसे हमने किए, इसलिए पढ़ाई भी एकदम अच्छे से करो। 5-6 मंथ्स पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो और प्रबुद्ध ही फॉलो करो, उससे तुम लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमेशा ये सोच कर रखो कि हमको 90+ में लाना है, तो वो हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू। Very good to you all for your wonderful suggestions. Now I ask with same question to Vijay sir. Sir, आप क्या suggestion देना चाहेंगे juniors को? मैम जो नेक्स्ट सेशन में जो 10th क्लास में आने वाले हैं, मेरी सजेस्ट बहुत अच्छा बोला जूनियर्स ने। अभी जो 10th क्लास के टॉपर्स हैं बहुत अच्छा बोला, एक ने बहुत अच्छा देखा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरे को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली उनके बारे में, उनकी स्ट्रेटजी कैसी थी पता तो रहता था पूरी तरह से, बट फिर भी बहुत कुछ इंटरनल चीज़ें बहुत सारा पता चला। जैसे बहुत लोगों ने बोला कि ब्लूप्रिंट से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ब्लूप्रिंट से पढ़ना चाहिए। आविष्कार का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेगेटिविटी अपने मन से पहले हटाइए, क्योंकि मैं जब स्कूल स्टार्ट किया था यहाँ पे पिछला प्रीवियस ईयर से स्टार्ट किया था, ये सब नए चेहरे थे मेरे लिए बहुत, तो मैं बहुत लोगों के अंदर बहुत तरह के डर देखता था, बहुत लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी रहती थी कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मेरा 70 आ जाएगा तो बहुत 80 आ जाएगा तो बहुत है।
मैंने यही बोला कि नहीं आप कुछ टारगेट मत फिक्स करो, क्योंकि आप मेहनत करो, आपको तब पता चल जाएगा, आपके एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना ला सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जैसे प्रगति जैसे थी स्पोर्ट्स पर्सन है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो, है ना, तो ऐसे मतलब इतने जम्प्स पर रहना हमारे स्कूल में भी बहुत प्राउड मोमेंट रहता है हमारे लिए भी बहुत, तो इतना स्पोर्ट्स को भी साथ में लेके चल के वापस स्टडी में आके वापस कंप्लीट की, तो इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है सर, मैं समझता हूँ, बट इतना डेडिकेशन के साथ उन्होंने कोई भी चीज़ मेरे इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो किया, तो मेरे को एक चीज़ का प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया और बहुत अच्छा एंड किया। एट द एंड जब 10th क्लास कंप्लीट हो रहा है तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने सक्सेस मिला है उनको। अगर वही ये 6 लोग बैठे हैं, अगर 6 के बाद जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं इस पोजीशन को। इतना आसान नहीं होता इंटरव्यू पे आपको आ पाना, कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनके कुछ ही बच्चे को यहाँ पे मौका मिला, तो डेफिनेटली इनको इनका मेहनत ही इनको आज यहाँ पे बैठने का काबिल बनाया, तो मैं यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर। So this is the end of our interview. I hope you all like our interview, our students interview. Please subscribe our channel, like our channel and share more and more to your friends. And please अगर हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आया होगा, ये इंटरव्यू सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हमारे कमेंट सेक्शन में देके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल। All the best.